हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल द मसल टीचर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं वी आर कंटिन्यूइंग विद एनसीईआरटी सीरीज। आज हम लोग जो करेंगे वो क्लास 8 का एक चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे एंड आई होप आई विल बी टचिंग एवरी कॉर्नर्स ऑफ दिस चैप्टर सो दैट इट विल बी अ बिट इजियर फॉर यू टू गो फॉर द एग्जाम्स। सो आज का जो स्टार्टिंग है, ठीक है, विल टॉक अबाउट ओके हाउ हाउ अ नेशनल मूवमेंट। ओके, जब एक टाइम पे जैसे ही था कि लोग अब सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे थे, लोग अब कभी भी इस देश को ना अपना बोलकर नहीं बोले थे कि नहीं दिस इज आवर नेशन, दिस इज आवर कंट्री, एक होकर नहीं बोले थे। सो ऐसा अचानक से क्या हो गया दैट यस आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऐसा क्या हो गया कि ऑल द पीपल आर नाउ टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, अगेंस्ट द imperialistic power of British। ऐसा क्या हो गया, ठीक है। सो विल बी हैविंग अ ब्रीफ टॉक ऑन दैट। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, ठीक है। ओके, देखो, बिफोर स्टार्टिंग लेट हैव अ स्मॉल डिस्कशन ऑन समथिंग। देखो, if we consider history as a whole, okay, if we consider history, ठीक है, if we consider history, okay, as a whole, ठीक है, we'll see it is being divided into ancient, ठीक है, it is divided into medieval, it is also divided into modern, ठीक है, ancient, medieval and modern if we think history as a whole, ठीक है। So if if we consider this topic, the the making of national movement, okay, we know it's a part of modern India. It's a part of modern history of modern India. Okay, if we see this whole of this modern India, if we see this whole of this modern India, okay, modern history of modern India is being divided into some of the parts. This is divided into two parts, basically two parts. That is what a period from 1757 to 1857, from 1757 to 1857, and second is from 1857 to 1947, ठीक है, सेकंड फ्रॉम 1857 to 1947। See, this modern Indian history, okay, the division of this modern Indian history into these two phases, ठीक है, कि ये एक दौर था, फिर ये एक दूसरा दौर आया, ठीक है। What all things happened in those areas, okay, in that thing, then again we have jumped into this areas, okay, this phase of the you can say of the history, okay, we'll be talking about, ठीक है। If we see by the time of 1757, we know that after Battle of Plassey, okay, there is a very good book named from Plassey to Partition, from Plassey to Partition, that is all on this, how we have struggled through all our life in order to get independence, उसी के ऊपर चैप्टर है वो बुक जो है, ठीक है, from Plassey to Partition। See, if you consider this 1757, you will see Battle of Plassey, ठीक है, Battle of Plassey। After Battle of Plassey, you will see 1764 in Battle of Buxar. In Battle of Buxar, you will see after defeating in Battle of Buxar, Britishers got the Diwani rights. Britishers got the Diwani rights, ठीक है, और revenue rights of Bengal, of Bengal, ठीक है। Are you clear or not? By the time of 1764, after the Battle of Buxar, we got the Diwani rights of Bengal, through which now, British, we can say that British subjugated us using our own money. British only subjugated us using our own money. They have subjugated us and they have used the same amount of money, in order to control us. We can say that. Now, after that, you will see, by the time, before 1857, before 1857, we'll see there are lot many revolts, we'll see there are lot many of revolts which are being carried out, ठीक है, बहुत सारे रिवोल्ट हुए, बहुत सारे वॉर्स, छोटे मोटे जो विद्रोह जिसको बोलते हैं रिवोल्ट्स, ठीक है, वो सब हुए, ठीक है। बट
in 1857, but in 1857 it was declared as what? Declared as what? First War of Independence. First War of Independence. क्योंकि ऐसा माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, for the first time people are united. For the first time people are united against whom? Against British. Against British. ठीक है, ऐसा माना जाता था. ठीक है, for the first time people are united against Britishers. Yes, if you open the NCERT book on the first page, there are some some incidents. Okay, there are some incidents which has been which has been portrayed on that book. Okay, there are some incidents which have been portrayed on that book that ऐसा चीज इस 1857 से लेकर जो टाइम पे हम लोग 1947 तक है, जो हम लोग बोलते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं, बिफोर दैट देयर आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच हैज बीन रिटन इन दैट फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, कि क्या क्या ऐसा सब चीज हुआ है. ठीक है, प्रायर टू दिस, एंड जिसके लिए लोग इतना भड़क गए, लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, एंड पीपल आर नाउ बिकमिंग अवेयर ऑफ द यस वी आर सम पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड वी शुड टेक सम स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट इंडिपेंडेंस. ठीक है, देयर आर डिफरेंट सोशियो religious movements. There are some different socio-religious movements. Yes or no? Yes. There are changes in education system. 1857 revolt. 1857 revolt. Taking over administration by the Britishers. Yes or no? You can say that जो क्या बोलते हैं, राजा महाराजा का पावर भी धीरे धीरे डिटोरेट करना, ये सब जो चीजें थी उस टाइम क्या होता था, इन लोगों को बहुत ज्यादा धीरे धीरे क्या करता था, फ्रस्ट्रेट कर रहा था. They are in very much in pain. Yes, now they are losing their own territory to these Britishers, and this is the time. Okay, this is the time they should be united in order take control of their own land, not the Britishers. ठीक है, so let us start. Okay, let us start with this chapter by talking about emergence of nationalism. Okay, emergence of nationalism. See, if we okay see, if we talk about this nationalism, what is that nationalism? See, nationalism is what? Is a feeling of love, is a feeling of oneness towards your own country. Nationalism is what? It's a feeling of love. It's a feeling of love or oneness towards your own country. Okay, yes or no? That is called nationalism. We are the nationals. We are the nationals of our country. And wherever you will see the word ism is there. ISM. I always talk about this. Wherever the word ISM is there, ism. See, it talks about the idea or the ideology of that thing. Okay, it talks about the idea. It talks about the idea or ideology. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? So nationalism क्या है? It is the love towards your own country. It is the feeling of love towards your own country. देखो, so how come these people they have gathered that feeling of nationalism? कैसे हो गया? How come these people they have gathered the feeling of nationalism? See, one thing, before the starting, you'll see people are different. For example, some of the people are farmers. Yes or no? Farmers. Some may be, some of the people are farmers. Some may be, you can say that some of them are landlords. Okay. Some of them, you can say the traders. Okay. Some of them are also weavers. Okay. But they are very, very, very much busy in their own life. They're very much busy in their own life. ठीक है, सब अपने अपने कामों में बिजी थे. ठीक है, सब अपने, be it a farmer, be it a trader, be it a weaver, they all are busy in their own world. Okay, and
because they do not back then, because they do not have that feeling कि yes हम लोग सब एक ही हैं, we have to fight against the Britishers, तब हम लोग का ये जो struggle था तब तक शुरू नहीं हुआ था. Okay, people now are aware of this. धीरे धीरे लोगों को धीरे धीरे क्या हो समझ में आने लगा. ठीक है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगे. नहीं, now we are being sorry, actually we are being exploited by this Britishers. ये सब चीज बातें होने लगे. फिर क्या हुआ देखो, when these people they saw कि they are being exploited. ठीक है, they are being exploited. You know, the country is running towards what you can say, poverty. ठीक है, country is running towards poverty. In order to bring some changes in the society, people started to form different associations. देखो क्या संगठन बनाने लगे लोग उस टाइम. ठीक है, people were now aware of this. नहीं हम लोग के ऊपर जाति हो रहा है, they are exploiting us, they are taking advantage of us. ठीक है, हम लोग के पैसे से हम लोग ही लूट रहे हैं, हम लोग के ऊपर दबदबा डाल रहे हैं. So in order to stop this, जो highly intellectual person during that point of time, थोड़े से जो those who are having nationalist ideas during that point of time, now what happened, they started to form different associations. Okay, and in that point of time there are literally lot many of associations which have been formed. Okay, Bombay Association हुआ. ठीक है, we can talk about this also. Okay, पूना सार्वजनिक सभा हुआ. ठीक है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हुआ, मद्रास महाजन सभा हुआ. ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ. ओके, these all things, okay, these all associations have been formed in order to bring some of the changes in the society. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? Then, according to these associations, you know what they said? They said that people of India. Okay, they said that people of India. Okay, they have to be sovereign. They have to be what? Sovereign. Okay, they have to be sovereign because they always wanted there shall be no interference of any other parties. Okay, any other countries. Okay, in any decision that has been taken in India. Am I clear or not? वो क्या बोले कि इंडिया जो है, इंडिया के लोग जो वो सोवरेन बॉडी होना चाहिए, वो सब लोग सोवरेन होना चाहिए ताकि उन लोगों के ऊपर कोई दबदबा ना बन सके. दे विल नॉट बी फोर्स्ड, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन व्हाटएवर थिंग दैट टेक्स प्लेस इन इंडिया. समझ में आया कि नहीं? क्लियर? ठीक है. उसके बाद देखो, नाउ सी, यू नो, जब धीरे धीरे जब ये सब चीज एसोसिएशन फ्रेम होने लगे, पीपल आर नाउ अवेयर ऑफ समथिंग, यस समथिंग इज हैपनिंग इन द कंट्री. ठीक है, लोगों के बारे में ये सब चीज पता धीरे धीरे चलने लगा ना. लोगों के नाउ जो सब लोग थे ना, उनको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा. ठीक है, पीपल आर नाउ रियलाइजिंग. ओके, जो एजुकेटेड जो थे इस टाइम, दोज पीपल हु आर हाईली एजुकेटेड, दोज देयर आर नॉट मेनी ऑफ लॉयर्स इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, एंड वो लोग ना अभी क्या कहते, वो लोग अभी क्वेश्चन करने लगे. दोज पीपल नाउ स्टार्टेड टू क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन, whenever you are literate or you are talented, you can say, or you are educated, you can say, you will question to any of the evil practices that has been done in the society. Obviously, तुम लोग कभी क्वेश्चन पूछो ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया कैसे? You are questioning because you are responsible to the society. Yes or no? And that is why you have the right to question also. If something is happening bad in the society, you have to question. ठीक है, और तब क्या लोगों के दिमाग में, जो एजुकेटेड थे, लोगों के दिमाग में रियलाइज करने लगे कि सोसाइटी में सब चीज हो क्या रहा है. ओके, and because of that they started to question what the evil practices or bad practices that has been done in the society. And ऐसा क्या हो गया उस टाइम
कि लोग बहुत ही ज्यादा जो देयर वाज अ डिस्टेंट अबाउट द इंडियंस ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सी, देयर वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, there was Arms Act, Vernacular Press Act, and Ilbert Bill. Okay, these three were some of the decisions taken by the British East India Company, which actually fueled the discontent among the Indians. यही तीन चीजों जो कि ब्रिटिशर्स ने स्टेप लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब स्टेप उन्होंने लिया था उस टाइम, जिसके लिए लोगों के दिमाग में लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगे. सो व्हाट ऑल आर दिस, लेट अस डिस्कस. ओके, देखो क्या था. See, what happened in Vernacular Press Act? Press Act. ठीक है, what happened in Vernacular Press Act? देखो क्या हुआ उस टाइम. You know, British sir, what happened by the time, लोग क्या किए उस टाइम, you know, they try to communicate with the help of newspaper. क्यों, देखो उस टाइम तो मोबाइल तो होता नहीं था. ठीक है, लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगा कैसे, आइदर चिट्ठी से नहीं तो न्यूज़पेपर से. ओके, एंड दैट इज व्हाई you know, people were trying to communicate through these newspapers, and that is why you will see there are lot many of newspaper during that point of time. बहुत सारे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर उस टाइम भी थे. ठीक है, तो क्या हुआ, लोगों का तरीका था कम्युनिकेशन करने का. ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच एवरी कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री. क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर ओडिशा में हूँ एंड आई एम राइटिंग समथिंग, आई हैव टू, इफ आई गिव एन इंफॉर्मेशन ओवर देयर इन दिल्ली, हाउ वुड आई गिव? Obviously, I will print it in the newspaper, and that is why the people who will reading those newspapers, they will be getting अच्छा ये चीज हुआ था. तो इसमें मेन एजेंडा क्या था, लोग जो ब्रिटिशर्स को इनका प्रॉब्लम क्या था इसमें, देखो क्या हुआ था उस टाइम. यू नो, हम लोग किसी ना किसी को जुगाड़ निकाल ही देते थे. सो यू नो, दीज इंडियन पीपल, व्हाट दे डिड, हम लोगों ने क्या किया, वो जो न्यूज़पेपर में हम लोग सारे अपने प्लान लिखकर उसमें ऐसे लिखकर उस प्रिंट करवाते थे. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स डू नॉट हैव द नॉलेज अबाउट द यू नो द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, द रीजनल लैंग्वेजेस जो उस टाइम जो उस एरिया में ज्यादा स्प्रेड होता है. सपोज फॉर एग्जांपल, आई डू स्पीक ओडिया, मे बी एट सम पॉइंट ऑफ जो 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 लोग हैं जो ब्रिटिश है, उन लोग ओडिया समझ में नहीं है, इट्स अ रीजनल लैंग्वेज, यस नो, स्पेसिफाइड टू सम ऑफ द रीजन. सपोज मान लेते हैं हम लोग कोई ट्राइबल लैंग्वेज यूज करते हैं, सपोज सांथाली हम लोग यूज करके लिखेंगे, तो मे बी सम ऑफ द पीपल दे विल नॉट नो दिस. यस, तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, उस न्यूज़पेपर में हम लोग के जितने प्लान्स हैं जो भी है उस न्यूज़पेपर से पहुंचाते थे लोगों के पास. Now Britishers came to know that they are using, this Indian people are using these tactics in order to provide the newspaper, in order to provide the information. Sorry. तब क्या हुआ, Britishers said that, what said, if any of the people, okay, they are found spreading any of the information, or they are planning any of the revolt against the Britishers, okay, तो क्या होगा, उनका न्यूज़पेपर बंद कर दिया जाएगा and the press will be banned. ठीक है, and that is what Vernacular Press Act is. Okay, if they print anything against the British government, okay, if they print anything against the British government, उसको क्या करेंगे, उसको, उस प्रेस को, न्यूज़पेपर को बंद कर दिया जाएगा, प्रेस को भी बंद कर दिया जाएगा. Am I clear or not? एंड देखो, तो उसी साल में, ठीक है, उसी साल में क्या हुआ, उन्होंने पहले आर्म्स एक्ट को भी, उन्होंने क्या किया, आर्म्स एक्ट को भी पास करवाया था. ठीक है, क्या पास करवाया था, आर्म्स एक्ट. ठीक है, आर्म्स एक्ट को भी पास करवाया था. सो ये क्या था, सी दिस आर्म्स एक्ट क्या बोलता है, ओके, द इंडियन पीपल वर नॉट अलाउड टू हैव आर्म्स, मतलब गन, ठीक, बंदूक नहीं रखना उनको अलाउड नहीं था. नॉट अलाउड इंडियंस टू हैव गन. फॉर एग्जाम्पल आर्म्स हम गन के हिसाब से ले रहे हैं, टू हैव ए गन. अलाउड किसको था, ठीक है, अलाउड किसको था, अलाउड, ठीक है,
तब की, इसलिए लोग तो ज्यादा भड़क गए कि हम लोग को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो आप लोगों ने अलाउ यूरोपियंस को क्यों किया? अलाउड यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस एज वेल, अलाउड यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस, ठीक है। ये था क्या? आर्म्स एक्ट। समझ में आया कि नहीं? फिर देखो क्या आया, फिर आया इल्बर्ट बिल, ठीक है। फिर क्या आया? फिर आया इल्बर्ट बिल। सी इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड रिपन, ठीक है। इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड रिपन। देखो, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन, ठीक है। जो क्या था? इल्बर्ट बिल था। देखो उस टाइम क्या हो रहा था, अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रहा था, ठीक है, अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रहा था, तो कोर्ट का जो जज होता है, ठीक है, द जज ऑफ द कोर्ट, ओके, दे कैन ट्राई द, सपोज मान लो मैंने कुछ किया है, ठीक है, तो मेरे को अगर कोर्ट अगर बुला रहा है, अगर कोर्ट हैज कॉल्ड मी, मेरे को कोर्ट बुलाया, मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो कोर्ट ने मेरे को बुलाया, एंड जो कोर्ट का जो जज है वो एक ब्रिटिश ऑफिशियल है, वो ब्रिटिशर है, ठीक है। तो पहले रूल क्या था कि अगर वो जो जज है, बीट ब्रिटिशर और बीट इंडियन, और कोई भी हो, अगर मैं ट्रायल में हूं तो वो हम लोग का ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा था। तो ये लॉ पास करवाया गया था, लेकिन यूरोपियंस भड़क गए वहां पर कि क्यों, वहां पर अगर वहां पर इंडियन जज होगा, वहां पर अगर इंडियन जज होगा, दे कांट गेट द ट्रायल ऑफ अस, मतलब दे कांट गेट द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस, क्योंकि वो लोग ब्लैक है, क्योंकि वो लोग ब्लैक है, बिकॉज दे वेर इन द इंफेरियर, यू नो कैन से इंफेरियर रेस, दे आर इंफेरियर रेस, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग बहुत ज्यादा रेसिज्म को फॉलो कर रहे थे उस टाइम, ठीक है, रेसिज्म, ठीक है, रेसिस्ट थे वो लोग, एंड दे कंसिडर इंडियंस एज ब्लैक, समवॉट एज ब्लैक, ब्राउन, यू कैन से ब्राउन, ठीक है, जो कि इंफीरियर रेस, जो कि इंफीरियर रेस है उनके, यू नो व्हाइट रेस से, उनके जो व्हाइट रेस से, हम लोग का जो रेस है, हम लोग का जो कलर है उनसे इंफीरियर है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू टेक अप दैट थिंग कि नहीं, हम लोगों को इंडियन जज हम लोग को कैसे ट्रायल में ले सकता है। हमें क्लियर? ये था क्या? इल्बर्ट बिल, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्लियर? इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड रिपन, रिमेंबर दैट, ठीक, ओके, देन विल सी। Okay. Now see. अब क्या हुआ देखो, सुनो। नाउ इतना सारा जो प्रॉब्लम वहां पर सोसाइटी में हो रहा है, देश में हो रहा था, देयर वाज लॉट मच ऑफ डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस, ठीक है, विद इन द सोसाइटी, लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहे थे, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था ब्रिटिश के जितने भी चाल है उन सब से, जितने भी एक्ट्स हैं उन सब से, एंड दैट इज वेयर यू नो the foundation of Indian National Congress, it has started. Okay, it has formed. Okay, Indian National Congress was founded in 1885 by A.O. Hume, Augustus Octavian Hume, A.O. Hume, A.O. Hume. Okay, the founder of Indian National Congress. So Congress, okay, Congress. It has been founded okay in 1885, and where they were having 72 members which is attended first session, जब वो पहला सेशन हुआ, ठीक है, and which was held at Bombay, in order to discuss all those things that are happening in the society. Okay, they were planning something against the Britishers. जब पहला सेशन हो तो वहां पर 72 members attended the meeting. Okay, from which like Surendra Nath Banerjee, ठीक है, we have Dadabhai Naoroji, Firoz Shah Mehta, W.C. Banerjee, Surendra Banerjee, okay, Ramesh Chandra Datta. These are some of the prominent members who were actually taking part in that meeting, who actually took part in that meeting during that point of time. And where the Congress, the Indian National Congress, they came up with some demands. And what are those demands? See,
सम ऑफ द डिमांड्स क्या था कि पहला था द ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव बॉडीज, ठीक है, greater representation of the Indians in the legislative bodies. See, now they wanted what? A legislative body. Okay, मतलब a law making body. Okay, where Indians would be there in a greater proportion. ठीक है, they wanted what? They wanted a law making body. They wanted a law making body जहां पर इंडियंस का प्रोपोर्शन ज्यादा है, ठीक है, जहां पर इंडियंस का प्रोपोर्शन ज्यादा हो. दैट मीन्स व्हाट? इलेक्शन. दैट मीन्स व्हाट? इलेक्शंस. एंड इन इलेक्शंस द पीपल शुड बी वोटिंग, ओके, टू दीज इंडियंस एंड दे शुड हैव अ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन उस टाइम, जिससे कि वो लोग क्या करेंगे, आगे जाकर वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे एंड दे विल हैव ए हायर रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली. दे विल हैव ए हायर रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली. ठीक है. दूसरा क्या था? टू फॉर्म लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द प्रोविंसेस व्हिच आर नो सच पॉलिटिकल बॉडी. ठीक है, उस टाइम जो प्रोविंसेस हुआ करते थे, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ हूम? दे आर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द Britishers. And so they wanted what? Now they wanted, some of the provincial legislative councils over there. उनको चलाने के लिए वहां पर काउंसिल उनको चाहिए होता था. फिर क्या हुआ? To appoint Indians to higher positions in the government offices. देखो, जैसे कि मैंने बताया था, उस टाइम क्या हुआ कि Britishers, they do not want the inferior race to get a higher position in their offices. In that point of time when it's considered to be the army, to be the army or the military, Indian was, max to max was allotted a subedar post during that point of time. ठीक है, सबसे जो ऊंचा पोजीशन इंडियंस को दिया था वो सूबेदार का ही होता था उस टाइम. ठीक है. एंड नाउ कांग्रेस डिमांडेड दैट व्हाट? that the appoint Indians in the higher position in society, in the offices. ठीक, गवर्नमेंट ऑफिस में उनको हायर पोजीशन देना ही चाहिए. नाउ क्या? टू होल्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया. ठीक है, उस टाइम तो इंपीरियल सिविल सर्विस आईसीएस होता था, इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता था, वो लंदन में होता था. ठीक है. नाउ दे वांट दिस इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड एट इंडिया ओनली. ठीक है. और क्या था? टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. Obviously, there should be a separation of power, so that there should be a law-making body, there should be an implementation body, and a body that is judicial, who should have a check on both the law-making body and a implementation body. Okay, that is called separation of power. That is called what? Separation of powers. ये also what? And lastly, they demanded that. आर्म्स एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुड बी रिपील्ड. ठीक है, जो आर्म्स एक्ट लगाए गए थे, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था, उसको भी हम लोग हटा देंगे. ठीक है. दीज आर सम ऑफ द डिमांड्स दैट हैज बीन पुट बाय द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस. समझ में आया कि नहीं? ठीक है. ओके. अब देखिए, now see, during the early phase, you can say that during the early phase of this international congress, it has been dominated by the moderates. Moderates मतलब क्या? See, moderates are those kind of people who wanted a change. Okay, उन लोग को चेंज चाहिए, लेकिन चेंज हो वो ग्रेजुअल होना चाहिए. ठीक है, चेंज जो हो वो ग्रेजुअल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम फोर्सफुली चेंज को ले आए, हम जबरदस्ती चेंज को ले. नो नो नो, दे वांटेड a change. Yes, they do wanted a change, but with gradual time, but gradually change लाना चाहते थे सोसाइटी में. ठीक है. वो लोग क्या किया उस टाइम? these moderates, in early dominated by the moderates, and who believed, in changing the policy, in changing the policies of government by sending petitions to the British government. They believed in protesting within the constitutional limits of the country. उनका मतलब क्या था कि देखो, हम लोग कुछ भी करेंगे, हम लोग जो भी करेंगे, हम लोग एक बाउंड्री के अंदर रहकर करेंगे, हम लोग लिमिट में रहकर काम करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो. ठीक है, असंवैधानिक हो. हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल. हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर हम लोग सब स्टेप लेंगे. समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि? एंड फिर वो लोग क्या बोले, कि विदिन द लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विदिन द लिमिटेशन ऑफ
procession. Second, also what they have said. They also said that. Okay, they also said that they don't. No, they didn't say. They followed. What they followed? They followed the process of request. They followed the process of request. They followed the process of prayers. दरख्वास्त करके भीख मांग कर, you can say that, दरख्वास्त करके भीख मांग कर, they followed process of petition. ठीक है, they followed the process of petition, prayer, request, petition. They followed this कि हाँ हम लोग हाथ जोड़कर उनको पूछेंगे, हम लोग उनको हाथ जोड़कर बताएंगे कि नहीं नहीं ये चीजें हम लोग को चाहिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, हम लोग ऐसा बोलेंगे. Moderates have this kind of mentality. Am I clear or not? समझ में आया कि नहीं? Okay. Now see what happened after that. The moderates published many articles in newspaper and journals highlighting the increase in poverty in the country under the British rule. The Congress in its earliest during the period of the moderates created awareness about the improvement of the peasants and food factors in the country. They demanded a reduction of military expenditure. देखो, उस टाइम क्या हो रहा था? जैसे कि मैंने बताया, these moderates they do follow the way of request of petition और prayers. उन्होंने क्या बताया? वो धीरे धीरे लोगों के पास पहुंचाने के लिए जो भी प्रॉब्लम हो रहा है सोसाइटी में, जैसे मैं बताया था, न्यूज़पेपर वाज द मेन वे, और यू कैन से द लीडिंग वे इन व्हिच दे कैन गिव आउट ऑल दोस इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन द सोसाइटी. उन्होंने क्या किया? न्यूज़पेपर में लिखना शुरू कर दिया कि कैसे लोग सफर कर रहे हैं ब्रिटिश के रूल के अंडर. ठीक है, इंक्रीजिंग पॉवर्टी कंट्री अंडर द ब्रिटिश रूल, लोगों को कैसे पॉवर्टी ज्यादा बढ़ रहा है ब्रिटिश रूल के अंडर. ठीक है, ये समझ में पता. और क्या हुआ? They started to make people aware about the improvement of the peasants and food shortages in the country. The demand reduction of military expenditure and revenues. इसका मतलब क्या है? देखो you look after क्योंकि because of the world war. If we talk about the world war, ठीक है, if we talk about the world war, ठीक है, maximum portion of the money or the revenue was going to the military या फिर डिफेंस में सबसे ज्यादा पैसा चल जाता था. ठीक है, the maximum percent of the budget is going to the defense. ठीक है, तो वो लोग क्या बोले? वो लोग बोले कि हम लोग ऐसा बात करके कैसे क्या करेंगे कि पीजेंट्स का जो कंडीशन है उसको इम्प्रोवाइज करेंगे. ठीक है, हम लोग ये भी डिमांड करेंगे कि आप लोग जितना पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हो कहाँ पर मिलिट्री में, उसको थोड़ा घटा दे, एंड यू शुड यूज दैट सेम अमाउंट ऑफ मनी फॉर द इम्प्रोवाइजिंग द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स, फॉर wherever it is required for the food shortages. क्योंकि जो खाना था उसमें बहुत शॉर्टेज होता था, तो वहां पर आप लोग पैसा लगा सकते हैं, ना कि मिलिट्री में. वो भी वो लोग बात किए. फिर क्या हुआ? दे ऑल्सो रेज डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द ट्राइबल्स बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट. जैसे कि मैंने बताया था पहले में कि द ट्राइबल्स दे डू गेट देयर लाइवलीहुड फ्रॉम दोज फॉरेस्ट. उनका जो पूरा जो जान है वो फॉरेस्ट में बसता था. एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट लॉस, द ट्राइबल्स वर डिनाइड द एंट्री ऑफ फॉरेस्ट. द ट्राइबल्स वर डिनाइड jhum cultivation and shifting cultivation. The tribals were denied the use of forest produces. The tribals were denied the hunting of animals as well. ठीक है, तो इस चीज ट्राइबल्स को मना किया जा रहा था, एंड दे वर लार्जली डिपेंडेंट ऑन दोज फॉरेस्ट. एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज ऑफ फॉरेस्ट लॉज, दे हैव बीन किक्ड आउट ऑफ दोज फॉरेस्ट एंड दे आर फोर्स्ड to work as construction workers. They are forced to work as for the cleaning purposes of the drains. They have forced to come to the cities in order to find some work as a labor. ठीक है, ये सब चीज हुआ था उस टाइम. ठीक है, and these are the kind of thing the moderns were trying to do कि हम लोग दरख्वास्त करेंगे, हम लोग बताएं कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आप प्लीज ये सब चीज ना कीजिए. ठीक है, ऐसे करते. And because of this, because the moderates felt that British government respected the ideals of the freedom and justice, and the demands would be accepted by the government. And वो इतना जब अच्छा ही समझते थे, they do think the British were so good. वो लोग बोलते थे क्योंकि उन लोग के पास जो ideas of justice, ideas of justice, ठीक है, ideas of ये लिखा ही है, ठीक है, demands फ्रीडम एंड जस्टिस, उन लोग के पास ये सारे, उनको वो ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं चीजों को, तो वो हम लोग का बात समझेंगे, एंड दे विल बी हैविंग ए चेंज इन देयर सिस्टम. ठीक है, but these moderates, okay, they were highly, these moderates, they have been highly criticized by the radicals. Okay, they have been highly criticized by the radicals.
जैसे कि देखो क्या हुआ रेडिकल्स कि यू नो बाय 1890 okay many people began to realize that radical policies needed to be followed in order to force the government to accept their demands. ठीक है, देखो धीरे धीरे आपको भी मालूम है और हम लोग को भी मालूम है, अगर घी सीधे उंगली से ना लेकिन उसको टेढ़ा करना पड़ता है, ऑब्वियसली ये तो हम लोग सालों से जानते ही है. सिमिलर वे नाउ प्रोसेस द प्रैक्टिसेस ऑफ दिस रेडिकल्स आर बीइंग फॉलोड. लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ये अच्छे से हम लोग बोले तो वो काम नहीं करेंगे, हम लोगों को मार देना ही होगा. वी हैव टू स्टार्ट फाइटिंग और वी हैव टू स्टार्ट हैविंग बिजनेस अगेंस्ट देम. कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट में करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट समथिंग दैट इज आवर. ठीक है, तो रेडिकल्स दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स मतलब क्या, द पॉलिसी ऑफ मॉडरेट्स. जो मॉडरेट्स जैसा फॉलो कर रहे थे उसको क्रिटिसाइज करना रेडिकल शुरू कर दिए. दे डू नॉट लाइक द वे ऑफ प्रेयर्स. रेडिकल्स डू नॉट लाइक द वे ऑफ प्रेयर्स और पिटिशन. ठीक है, रिक्वेस्ट, प्रेयर्स, पिटिशन, रेडिकल्स डू नॉट लाइक दिस. ठीक है, दे से दैट इफ यू वांटेड टू गेट स्वराज, इफ यू वांटेड टू गेट इंडिपेंडेंस, यू हैव टू फाइट फॉर इट, यू हैव टू फाइट फॉर इट. एंड दैट इज व्हाट दे सेड दैट ओके दैट इज व्हाट दे सेड व्हाट कि देखो petition की तो they believe that people should have to fight for gaining Swaraj and self independence. अगर आपको चाहिए you have to fight for it, you have to get it that what is yours. सीधे नहीं तो उंगली टेढ़े करके निकालो उसको. Am I clear? समझ में आया कि नहीं? Clear है? Okay. Then see. Now see. Now, by the time of 1905, थोड़ा सा कुछ बात करते हैं. ठीक है, देखो उस टाइम वाइसरॉय हुआ करते थे कौन? लॉर्ड कर्जन. ठीक है, देखो बिकॉज ऑफ लॉट मच ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन द सोसाइटी. ठीक है, ब्रिटिशर्स लोग को भी पता है और हम लोग को भी पता है क्योंकि बहुत ज्यादा ही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो कि सोसाइटी में चल रहे थे, लोग भड़क रहे थे, लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट में जा रहे थे. पीपल आर वेल अवेयर ऑफ इट, ब्रिटिशर्स आर वेल अवेयर ऑफ इट. एंड दैट इज व्हाई you know what happened? They thought that in order to have a good control over the area, we have to divide them, then we have to rule them. ठीक है, ब्रिटिशर्स का जो बेस्ट पॉलिसी था जो आज तक भी हम लोग उसको सफर कर रहे हैं, दैट इज डिवाइड एंड रूल. उनको जात पात के हिसाब से बांट दो, उनको रिलीजन के हिसाब से बांट दो. ये सब लो, जात पात से बांट दो, रिलीजन के बाद बांट दो, उनको यू कैन से दैट कलर के हिसाब से उनको बांट दो. ब्रेक देम, डिवाइड देम, हाउ मच इज पॉसिबल, ब्रेक देम, डिवाइड देम. तब जाकर उनको हम लोग उनको पर ज्यादा अच्छे से कंट्रोल ला सकते हैं. ठीक है, we say that united we stand, strengthened. ठीक है, we are strongest, we are. ठीक है, united we stand, strong we are, the most strong we are. Similarly, जितना अलग होंगे उतना ज्यादा टूटने में ज्यादा इजी होगा. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो कर्जन ने क्या बोला? ठीक है, कर्जन ने बोला क्योंकि वो जो एरिया था, ठीक है, वो जो एरिया था वो टेरिटोरियल मैनेजमेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था. ठीक है, द कर्जन सेड दैट वो बहुत बड़ा एक एरिया है, हम लोग उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सो लेट अस डू व्हाट, उसको बीच में से बांट देते हैं, एंड दैट इज हाउ इट विल बी इजियर फॉर अस टू रूल देम. लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था. एक्चुअली क्या था ना, दे वांटेड टू ब्रेक देम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? रिलीजन. बोला था ना, डिवाइड एंड रूल. हिंदू मुस्लिम को वहां पर पहले तोड़ो, वहां पर अगर दे विल बी यूनाइटेड देन वी विल नॉट बी. ठीक है, यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ब्रिटिश जान गए थे वो चीज, तो पहले उनको तोड़ो. क्या हुआ उस टाइम? ठीक है, कर्जन ने क्या हुआ 1905 को, ठीक है, 1905 को उसने बंगाल पार्टीशन किया, एक ईस्ट बंगाल बना दिया दैट वाज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम पॉपुलेशन एंड वेस्ट बंगाल दैट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदू पॉपुलेशन. समझ में? देखो अगर ऐसा होता, अगर उसको चाहिए था कि नहीं वो प्रॉब्लम हो रहा है उसको संभलने के लिए, तो ऐसा तो पूरा ही नहीं तोड़ता. क्या एक मुस्लिम पॉपुलेशन पर अलग चला गया, पूरा हिंदू पॉपुलेशन अलग चला गया. इट वाज ए नोन मूव फॉर देम.
जानबूझकर ही ऐसा किए हैं वो लोग, समझ में आया कि नहीं? सी, 1905 Kargil partition Bengal, East Bengal and West Bengal. Kargil emphasized that Bengal was a larger province and needed to be divided in order to efficiently manage the state. जैसे कि मैंने बोला, वो अच्छे से उसको चला नहीं पाते, एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे, इसलिए उसको तोड़ना पड़ा बीच में से. And people could easily see that Bengal was divided on the religious lines. Obviously, इसमें मैंने बोला, वो बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो रहा है, लेकिन असली मेन मुद्दा क्या था? रिलीजन के बेसिस वो पहले तोड़ा, डिवाइड एंड रूल. देखो जैसे कि बोला, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाज ए हिंदू मेजॉरिटी एंड ईस्ट बंगाल वाज ए मुस्लिम मेजॉरिटी. ठीक है, इट वाज एन अटेम्प्ट टू स्प्लिट द यूनिटी ऑफ द पीपल. जैसे मैंने बोला, लोगों को तोड़ने के लिए, ठीक है, डिवाइड करो, जात के ऊपर डिवाइड करो, रिलीजन के ऊपर डिवाइड करो, लैंग्वेज के ऊपर डिवाइड करो, कलर के हिसाब से डिवाइड करो. दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज व्हाट वी कॉल डिवाइड एंड रूल. वही चला था उस टाइम. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखो, ये जो पार्टीशन था, इट वाज लार्जली अपोज्ड बाय मॉडरेट्स एंड रैडिकल्स. ठीक है, मॉडरेट्स एंड रैडिकल्स दोनों इसको अपोज करने लगे. ठीक है, बहुत सारे पब्लिक मीटिंग्स होने लगे. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ पता है ना, लोग ऐसा बोलने लगे कि नहीं नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, we should start boycotting everything that has been done by the Britishers. ठीक है, we should start everything that has been done by the Britishers. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे. हम लोग क्या करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे. Everything done in India will be allowing that, we will be going for that, and anything that has been done by the Britishers will be boycotting that. ठीक है, and ये सब धीरे धीरे शुरू होने लगा. And you know, because in this स्वदेशी movement was also called as the Vande Mataram movement in the regions of Andhra Pradesh as well. ठीक है, this is also known as Vande Mataram movement in the Andhra region, ठीक है. Then क्या हुआ, the Swadeshi movement was opposed to the British rule and advocated the use of Swadeshi or indigenous good. ठीक है, वो स्वदेशी मूवमेंट क्या बोला था कि कुछ भी चीज जो कि इंडिया में बना है, कि हम लोग बनाए हैं, कि हम लोग यूज कर रहे हैं, इंडिजिनियस इज हम लोग के रीजन में, तो उसको आप लोग यूज करो. कोई भी चीज अगर ब्रिटिश बनाए तो उसको हम लोग बॉयकॉट करेंगे. ठीक है, द बॉयकॉट मूवमेंट आल्सो डेवलप्ड व्हिच एम्ड एट बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स, जैसे मैंने बताया. ठीक है, फिर देखो सॉरी, आई एम नॉट वेल. ओके, फिर देखो क्या हुआ कि many people in the country began to feel that revolutionary violence was necessary to overthrow British rule. The All India Muslim League was founded in 1906 at Dhaka. The league wanted separate electorates for Muslims. Following the policy of divided rule, the government reserved some seats for Muslims. This marked the beginning of communal politics in India. देखो, सुनो, Britishers, okay, they largely supported formation of Muslim League. And what? And separate electorate. They largely supported this कि हाँ, आप लोग एक नया लीग बनाओ जहां पर बस मुस्लिम हो, एंड आप दावी करो, ठीक है, आप लोग डिमांड करो कि क्या हम लोग को एक नया सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए. देखो, जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, दैट मींस दैट एरिया दे वांटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ओनली फॉर मुस्लिम्स. अलग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ओनली फॉर मुस्लिम्स. मतलब कि ऐसा कि मान लो एक एरिया है, वहां पर जितने भी मुस्लिम है, दे विल हैव ओनली ए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव and the Muslim people will only be voting to that Muslim. यही है सेपरेट इलेक्टोरेट. इसका मतलब क्या है, ये कम्युनलिज्म इसके अंदर डाला. ये सुनो, they have put up the ideology of what religion. ये सुनो, रिलीजन के पैसे यहाँ पर तोड़ दिया वो लोग, डिवाइड एंड रूल वही चीजें किए हैं. ठीक है, this is starting what communal representation of communal politics in India. The Congress split, okay, was 1907 was the moderates that were not in favor of the boycott movement. The Congress however united in 1915. देखो फिर क्या हुआ, द कांग्रेस, ठीक है, जो कांग्रेस था उस टाइम, ठीक है, वी हैव मॉडरेट्स, वी हैव रैडिकल्स. ठीक है, इन दोनों का ना नहीं पड़ रहा है. ठीक है, इन दोनों में नहीं पड़ रहा था. ऑब्वियस the moderates wanted some of the changes in the society that should be gradual. They wanted forceful change. These moderates, they were not in the favor of boycott. ठीक है, क्यों? वो ऐसा सोच रहे थे, अगर हम लोग कुछ भी चीजों को बॉयकॉट कर रहे हैं, if we are boycotting something, क्या वो चीज हम लोग के पास है? I will give you an example. For an example, सुनो, we'll be studying standard 10. Okay, देखो, they said that boycott, ठीक है, boycott the foreign cloth.
ठीक है। मॉडरेट्स बोल रहे हैं अगर आप लोग बोलो कि हम लोग बॉयकॉट कर लेंगे फॉरेन टू, तो ठीक है, तो हम लोग यूज क्या करेंगे, खादी, ठीक है, हम लोग यूज क्या करेंगे, खादी। नाउ सी द मेन प्रॉब्लम, खादी वाज, इट वाज वेरी कॉस्टली, इट वाज एक्सपेंसिव, तो पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। ठीक है, ये बात आप लोग बोले ना, आप लोग बोले कि फॉरेन क्लॉथ यूज मत करो। अगर फॉरेन क्लॉथ यूज ना करेंगे, जो कि मान लेते हैं 200 रुपए में मिल रहा है, मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल 200 रुपए में हम लोग को फॉरेन क्लॉथ रेडीमेड प्रोडक्ट्स मिल रहा है, एंड यू वांटेड टू बाय अस खादी, दिस खादी नियरली 1000 रुपीज, तो हाउ कैन ए कॉमन मैन एंड पीपल विल अफोर्ड दिस, नो, तो हो गया। फिर मॉडरेट्स बोले कि आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग स्कूल्स को बॉयकॉट करेंगे, कॉलेज को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है, हम लोग बॉयकॉट करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। आर यू एबल टू गिव अस सम नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप लोग हम लोग को दे सकते हैं क्या इंस्टीट्यूशन पढ़ने के लिए, नहीं ना, तो बॉयकॉट करके क्या फायदा। Are you clear or not? This was the thing that was happening in the society at that point of time, and that is why Congress split. Congress was split into two different parts. And later in 1915, okay, 1916, all of it said, they came together. The Congress and the Muslim League signed a Lucknow Pact and came together to demand representative government in the country. ठीक है, फिर से 1915 को, ठीक है, वो लोग फिर से जुड़ते हैं, and they wanted to ask for what, representative government. They wanted what, वही हम आज हम लोग का चल रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब क्या, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब ये है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब क्या, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब यस, वी द पीपल, वी विल बी चूजिंग समवन, वी विल बी वोटिंग फॉर समवन, एंड वी विल बी वोटिंग अगेंस्ट समवन, जिसको ज्यादा वोट मिला, दैट ही विल बी विनिंग और शी विल बी विनिंग, एंड शी और ही विल बी द representative of us, who will be representing us at the assembly. समझ में आया? That is what representative government they made for. Am I clear? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, फिर देखो, अब देखो, देखो, why this Indian national movement becomes a mass movement? ऐसा क्या हो गया कि ये मास मूवमेंट? देखो, be it a business class, be it a high educated person, be it a peasant, be it a woman, okay, any farmers, landlords, okay, everyone, everyone started to take part in this, okay, everyone started to take part. देखो, by 1920s, this national movement became a mass movement. क्यों? देखो, being the highly educated elite class, you can say elite class, okay, be it a peasant, tribal, students, workers, women, everyone started to take part in this movement. ठीक है, many industries also began to support Congress because the political situation of the country changed because of the First World War. Okay, देखो, सब लोग अभी जहां सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, ठीक है, एंड जो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन जो था कंट्री का उस टाइम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ऑब्वियसली जब वार हुआ, ठीक है, वार जब हुआ, ठीक है, जब वार हुआ ना, एंड बिकॉज ऑफ दिस वार, ओके, देयर वाज इंक्रीज इन रेवेन्यू, there was increase in revenue, there was increase in, sorry, there was new taxation system, new tax system, ठीक है, there was higher expenditure in defense, there was higher expenditure in defense, तो लोगों का जो पैसा यहाँ पर चल जा रहा था, there was food shortage, there was food shortage, ठीक है, लोगों का हालत खराब था उस टाइम। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द रेवेन्यूज, देखो, रेवेन्यूज एज डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सो ठीक है, ऑब्वियसली उनको डिफेंस में पैसा चाहिए। उस टाइम जो था, हम लोग जानते हैं 1914 से 1919 हम लोग का वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, एंड बाय द टाइम 1920 इसी टाइम पे तो है ऑब्वियसली, ठीक है, दिस इज गोइंग टू द डिफेंस। फिर क्या हो रहा था, द ब्रिटेन इंक्रीज द प्राइसेस of almost every commodities in the country, obviously क्योंकि उसको पैसा चाहिए, तो लोगों के पास पैसा होगा, तो वहां उन पैसा निकालने के लिए चीजों का दाम वो बढ़ा देगा, in order to, so that we will be paying more and they will be getting more of the money from them, from us, ठीक है, and and why common people suffer, ठीक है, जो भी common लोग सफर कर रहे थे, business group profited from the war, ठीक है, उस टाइम क्या हो रहा था ना, जो कॉमन पर्सन, obviously because if we think of the middle class, if we think of the lower middle class, the peasants, the workers, or anyone, they were suffered at that point of time, they largely suffered,
and the business class people, the industrialists, they were in profit because why, because the Britishers demanded a lot many things during the battle. During the war, obviously, they demanded sacks, they demanded, the different kind of goods. Okay, so jute bags, cloth, rails, they demanded, and because of this, they are then having a lot much of production of these goods, and that is where they were trying to, they earned a lot much profit. Okay, and see, and this is how the Indian nationalists began to demand the greater opportunities for the development. And this is how, ठीक है, क्योंकि वो धीरे जान गए कि अभी हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है, and this is how we'll be getting a lot much of profit in that amount of time. ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जान कहते कि नहीं, आप लोग ये धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, and this is how they wanted, they demanded for larger opportunities. ठीक है, ये भी हुआ. उसके बाद देखो क्या हुआ. अब क्या हुआ, by the time of 1915 or 1916, okay, by the time of 1915, ठीक है, साउथ अफ्रीका से हम लोग के हीरो आ गए. ठीक है, कौन, महात्मा गांधी जी. ठीक है, महात्मा गांधी जी वो रिटर्न आ गए. And he was very famous back then. He was very famous because he was also carrying out satyagraha. He was carrying out satyagraha there at South Africa, against racism, ठीक है, तो वहां पर वो फेमस थे. ठीक है, एंड जब यहाँ पर रिटर्न जब आए, ओके, व्हेन ही रिटर्न बैक टू इंडिया, he started a satyagraha movement. He started a satyagraha movement at Champaran, at Kheda, at Ahmedabad. ठीक है, he started three satyagraha movement, okay, at Champaran, at Kheda, at Ahmedabad. At Champaran क्या हुआ पता है ना, चंपारण में क्या हुआ, he started a satyagraha for this indigo planters, for against the indigo planters, because the indigo planters were forcing the peasants in order to grow indigo, which is actually taking away the soil fertility, and they are not able to grow this rice crops during that point of time. ठीक है, तो वो वहां पर उसके लिए सत्याग्रह किए. जब खेड़ा में आए, ठीक है, there was a crop failure because of famine, and the Britishers were largely demanding the revenues, to which he started satyagraha against the British, said that he will not have to pay the revenue. At Ahmedabad क्या हुआ, there was a cotton mill, okay, there was a cotton mill where the workers of the cotton mill were asking a 50% of salary hike, okay, and the cotton mill owner, they were agreeing up to 20%, where again Gandhi started satyagraha and settled down with 35% as the salary hike or the wages hike. Am I clear? ये हुआ था. फिर क्या देखो, see, Gandhi also gave a call for against the Rowlatt Act, which was actually passed with the British. The act of, देखो, Rowlatt Act जो था, इसके बारे में फिर से बता देता हूँ. Rowlatt Act, see, Rowlatt Act मतलब क्या? See, वो क्या बोल रहा है, अगर कोई भी इंडियंस कुछ भी गलत बोलता है किसके बारे में, ब्रिटिश के बारे में, कुछ छापता है, कुछ एसोसिएशन बनाता है, फॉर्मेशन बनाता है ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ कुछ गलत बोलता है, then he will be jailed, ठीक है, कितने साल तक, 2 साल, विदाउट ट्रायल, ठीक है, विदाउट ट्रायल, ठीक है. एंड इसीलिए गांधी also started a सत्याग्रह against the Rowlatt, that is called as Rowlatt सत्याग्रह. ठीक है, समझ में आया कि नहीं सब लोगों को? ओके, देन सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, तबीयत थोड़ा ज्यादा ही खराब है मेरा. ठीक है, ज्यादा बोल रहा हूँ तो ज्यादा खांसी आ रहा है. ठीक है, नाउ वी विल टॉक समथिंग अबाउट द खिलाफत मूवमेंट एंड विल टॉक अबाउट द एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ठीक है, नाउ सी, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ दिस खिलाफत मूवमेंट. ठीक है, तो क्या हुआ उस टाइम, गांधी वांटेड अ लार्जर ग्रुप टेक पार्ट अगेंस्ट द स्ट्रगल, टेक पार्ट, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस. तो उस टाइम लोगों को यूनाइट करना गांधी का मेन मोटो था. ठीक है, एंड गांधी सॉ अपॉर्चुनिटी ओवर हियर. ठीक है, गांधी सॉ अपॉर्चुनिटी ओवर हियर मतलब क्या, कि क्या हुआ उस टाइम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर क्या हुआ ना, गांधी saw that Britain has defeated Ottoman Empire during that point. आज के टाइम जो टर्की है, ठीक है,
तो द ब्रिटेन हैज डिफीटेड ऑटोमन एम्पायर एंड ही वाज अबाउट टू पुट अप अ हार्श ट्रीटी, ओके, अ हार्श ट्रीटी ऑन दिस ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो गांधी इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं एंड से दैट टू द मुस्लिम कम्युनिटी, ओके, एंड ही सेड दैट टू द मुस्लिम कम्युनिटी, टॉक्ड विद he talked with Ali brothers, he talked with who, with the Ali brothers. I hope it is visible. Okay, he talked with Ali brothers. एक का नाम क्या था, मोहम्मद अली, एंड दूसरे का नाम क्या था, शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ओके। ही टॉक्ड विद अली ब्रदर्स and he said that opportunity that yes, it is the time that we can unite the Hindus and Muslim population of the country. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बोला कि see your brothers, okay, your Muslim brothers, okay, were suffering at Ottoman Empire by the harsh treaty put up by the Britain, okay, by the harsh treaty put up by the Britain, and you should take steps in order to throw out of the country, throw out them out of the country. समझ में? तो इसको अपॉर्चुनिटी लेकर लोग वहां पर बात किए एंड दैट इज हाउ खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, एंड दैट इज हाउ खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। समझ में आया कि नहीं? एंड सेकेंडली व्हाट दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर नॉन कोऑपरेशन मतलब क्या? गांधी का जो मेन बात एक था, उनके जो एक बुक लिखे थे वो आई थिंक हिंद स्वराज, ठीक है, उस बुक में वो ऐसा लिखे थे कि एक बुक था, ठीक है, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दैट इज हिंद स्वराज, ठीक है, आई थिंक दैट इज हिंद स्वराज। इन दैट बुक ही सेड दैट बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग द ब्रिटिशर्स दे वर एबल टू रूल अस, क्योंकि हम लोग उनको कोऑपरेट कर रहे हैं इसलिए हम लोग के ऊपर वो दबदबा बना के वो हम लोग को कंट्रोल कर पा रहे, रूल कर पा रहे हैं। सो हम लोग कोऑपरेटिंग नहीं करेंगे एंड दे विल नॉट बी एबल टू रूल अस। तो दैट इज हाउ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या क्या हुआ? दे नाउ दे बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लॉथ्स, ओके, द शॉप्स आर पिकेटेड, लिकर शॉप्स आर पिकेटेड, ठीक है, लोग स्कूल्स कॉलेजेस बच्चे जो थे दे आर नॉट स्टूडेंट्स, they are not they left the schools, they left the colleges, lawyers they left the court, okay, the headmaster they left the teaching, okay, and ये सब चीज उस टाइम होने लगा, ठीक है। they started to not cooperate with the British made policy or British made offices, ठीक है, सब लोग ऑफिस छोड़ दिया अपना अपना, ठीक है, एंड दैट इज हाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। लेकिन नॉन कोऑपरेशन, गांधी आस्क्ड फॉर नॉन कोऑपरेशन विदाउट एनी वायलेंस, विदाउट एनी वायलेंस। देखो वही हुआ इस टाइम, देखो क्या हुआ, ठीक है। And one more thing also I forgot, this non-cooperation movement, okay, was also 1922 it was also withdrawn, it was also withdrawn। क्यों विड्रॉ किया गया? देखो क्या हुआ, तो गांधी का जो मेन आइडिया क्या था, हम लोग किसके साथ जाएंगे, हम लोग जाएंगे ट्रूथ के साथ, हम लोग जाएंगे नॉन वायलेंस के साथ। किसके साथ? नॉन वायलेंस के साथ। सो यू मस्ट फॉलो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो उस टाइम क्या हुआ, 1922 को 5 अप्रैल में क्या हुआ, 5 अप्रैल और 5 फरवरी आई गेस, आई एम सॉरी, थोड़ा मैं इसको देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो क्या हुआ, तो उस टाइम क्या हुआ ना, गांधी, ओके, द पीपल, द प्रोटेस्टर, दे वर प्रोटेस्टिंग ऑन द रोड, ठीक है, एंड उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी होता है, ठीक है, दे वर लार्जली फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, दे वर लार्जली फ्रस्ट्रेटेड एंड दे वर जस्ट पासिंग थ्रू अ पुलिस स्टेशन, ठीक है, दे वर जस्ट पासिंग थ्रू अ पुलिस स्टेशन एंड लोग जब पुलिस के जो पुलिस ऑफिसर्स, एक दो पुलिस ऑफिसर बाहर आकर बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट ना कीजिए, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। सो इन रेज, so those protesters in rage they set up fire in that जो पुलिस को जला देते हैं, जिसमें 22 जो पुलिस ऑफिसर जल जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। एंड इट वेंट अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस ऑफ गांधी एंड दैट इज व्हाई ही वाज फोर्स्ड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। am I clear? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? वही सब लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। Okay. Then see, then what happened? Then we come up with the civil disobedience movement। देखो ये जो CDM जो था, ठीक है, जो CDM जो था, it started with salt mud, it started with the salt mud। कि क्या, in the Gandhi Irwin Pact, in the Gandhi Irwin Pact, in the Gandhi Irwin Pact, okay, Gandhi Irwin Pact, ठीक है, जब गांधी ने कुछ डिमांड्स रखे थे, जब गांधी ने कुछ डिमांड रखे थे, ठीक है,
कि नहीं हम लोग इस चीजों से आप लोग को करना पड़ेगा, नहीं तो आई विल बी गोइंग फॉर द सॉल्ट मार्च। क्यों सॉल्ट मार्च? सॉल्टिंग क्यों? गांधी को पता था एक यही एक चीज है, सॉल्टिंग चीज है जो रिच एंड पुअर दोनों को मिला सकता है। नहीं तो सोसाइटी में उस टाइम डिफरेंस थे, कास्ट को लेकर भी थे, पैसे को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर भी थे, रिलीजन को लेकर भी थे। एंड दैट इज व्हाई गांधी न्यू दैट सॉल्ट इज द ओनली थिंग दैट कैन ब्रिंग दिस रिच एंड पुअर, इट कैन ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। क्योंकि सॉल्ट बिना नमक तो किसी को स्वाद ही नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली दे विल फाइट फॉर इट बिकॉज दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ द टैक्सेस ऑन सॉल्ट। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई गांधी सेड दैट ही विल नॉट बी फॉलोइंग माय 11 डिमांड्स, तो ही विल नॉट बी फॉलोइंग द 11 डिमांड्स। ठीक है, so I'll be going for the salt march, and that is why Gandhi, which like some of the people, okay, Gandhi, which is 78 people, I guess, they went for 240 miles. They walked for 240 miles from Sabarmati Ashram to Dandi. Okay, 1913, the Dandi march. Dandi march में साबरमती आश्रम to Ahmedabad, small village of Dandi, present गुजरात में जो है, ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या किया, सॉल्ट मार्च को, तो वहां पर सॉल्ट लॉ को तोड़ा एंड दे स्टार्टेड go for this salt। ठीक है, ये था हम लोग का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, जो भी हम लोग करेंगे, हम लोग दिस सिविल मूवमेंट made salt in defense of the British rule. Peaceful protests were held in every place. The government began brutally crushed and killed। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, ये जो मूवमेंट था इट वाज ए पीसफुल मूवमेंट। ठीक है, शांतिपूर्ण पूरा ये मूवमेंट था कि गांधी है तो वो तो नॉन वायलेंस ही चूज करेंगे। ठीक है, बट the police officials or the British officials, they started to crush these protesters and lot many people were also killed। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके, देन देखो now see the government of India in 1935। ठीक है, The government of India in 1935 gave some degree of autonomy to the provinces. It announced elections to the provincial legislatures in 1937. The Congress formed the government of 11 provinces. In the Second World War, the Congress demanded independence in the exchange of support of Britain in the war. When the government refused, the Congress ministries resigned. One of the development during the period was the formation of the International Army by Subhash Chandra Bose. He left Calcutta and went to Singapore and founded the Azad Hind Fauj and the International Army, liberals country from the British rule। देखो, एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर लिखा गया है। See what happened in 1955? क्या हुआ? It is a Act Government of India 1935। इसमें बहुत सारे पावर्स गवर्नमेंट को दिया गया था उस टाइम, जिसमें से एक सबसे मेन पावर जो था क्या था, ऑटोनॉमी देना। किसको? कि हाँ आप प्रोविंसेस को, किनको? प्रोविंसेस को, कि आप खुद से कुछ काम कर सकते हैं, इसको ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनोमस। ठीक है, तो इट ऑल्सो अनाउंस इलेक्शन का पावर वहां पर अनाउंस किया गया, इलेक्शंस भी अनाउंस किया गया। ठीक है, जिसमें से 11 से 7 जगहों में कांग्रेस ने जीत गया था उस टाइम। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो कांग्रेस सेड दैट अगर आप लोग हम लोग को पूरा फुल इंडिपेंडेंस दे रहे हो, पूर्ण स्वराज दे रहे हो, ठीक है, पूर्ण स्वराज दे रहे हो, सो वी विल बी टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड वॉर, विल बी टेकिंग पार्ट इन वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, कांग्रेस ऐसा बोला कि अगर आप लोग हम लोग को फुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे रहे हो, सो वी विल बी टेकिंग पार्ट इन दैट वर्ल्ड वॉर एंड विल बी हेल्पिंग द ब्रिटिशर्स। ठीक है, लेकिन जितना भी सब द लॉट मेनी ऑफ कांग्रेस पीपल दे आल्सो रिजाइन। ठीक है, दे आल्सो रिजाइन क्योंकि गवर्नमेंट जो था उस टाइम, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वो उसने मना किया कि नहीं हम लोग आपको पूर्ण स्वराज नहीं दे सकते, एंड दैट इज व्हाई the lot many of Congress ministries they resigned। Okay, and one of the major development in that time was the formation of International Congress, sorry International Army। ठीक है, I'm sorry, उस टाइम जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था किसका? नहीं, इंडियन आर्मी का। ठीक है, बाय सुभाष चंद्र बोस एंड बाकी वो जब फिर से चले गए सिंगापुर, वहां पर आजाद फौज उन्होंने गठन किया। ठीक है, फॉर्म आजाद हिंद फौज। ठीक है, in order to liberate the country from British rule, in order to liberate the country, free the country from British rule। ठीक है, तुम हमको खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ओके, then what? See, then after some period of time, by the time of 1942, Gandhi launched Quit India movement।
ठीक है, एंड स्टेटेड द ब्रिटिश शुड क्विट इंडिया, एंड स्टेटेड दैट ब्रिटिश शुड क्विट इंडिया। नाउ जब धीरे धीरे लोग ब्रिटिशर मानने नहीं लगे, ब्रिटिशर ना कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तो अब बोलते हैं ना, अब पूरा जो पानी था सर के ऊपर चला गया, गांधी इज नाउ से नो, अब तो होकर ही रहेगा, क्या ऐसा करो तो मरो, डू और डाई। ओके, गांधी स्टेटेड व्हाट, गांधी स्टेटेड व्हाट, आस्क पीपल डू और डाई इन एन एफर्ट टू ड्राइव ब्रिटिश आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ठीक है, कि तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, यहाँ से ब्रिटिश को हटाओ। एंड दैट इज व्हाई, बिकॉज द स्टेट वाज सो एग्रेसिव, बिकॉज द स्टेट वाज सो एग्रेसिव, गांधी along with other leaders they were jailed at the very next day, they are also jailed the very next day। इतना ज्यादा एग्रेसिव वो डिसीजन था उस टाइम का, तो दे वर फोर्स्ड, ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू किक आउट दिस पीपल, किक आउट दिस ऑफिशियल्स, एंड दे सेड नो, इन लीडर को अभी जेल में डालना ही होगा, नहीं तो हम लोग को निकालकर रहेंगे। ठीक है, एंड पीपल बिलोंगिंग टू एवरी कम्युनिटी जॉइंड द मूवमेंट, symbols of British such as post, telephone, telegraphs were attacked all over the country, people set up their own governments in many areas, the British people repressed the movement and thousands of people were killed and many were jailed। ठीक है, जितना सारा चीज जो ब्रिटिश ने किया हुआ था, टेलीग्राफ्स हुआ, पोस्ट हुआ, ठीक है, वो सब तो अटैक किए, वो सबको तोड़ फोड़ दिए, एंड ब्रिटिशर्स tried their hard in order to suppress this, and they were to some kind they also were succeeded in that, and also killed a lot many of people, they also killed a lot many of people। उसके बाद क्या हुआ, ओके, फिर देखो क्या हुआ। No, when the people are fighting against the British to liberate the country, जब लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करते कंट्री को, यहाँ से ये कंट्री से ब्रिटिश को निकालने के लिए, ठीक है, the Muslim League moved a resolution demanding independent states, and ठीक उसी टाइम पे, ठीक उसी टाइम जब लोग यहाँ पर लड़ रहे थे ब्रिटिश को, ब्रिटिश के साथ, कि ब्रिटिश यहाँ से निकले, ठीक उसी टाइम पे मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दिया क्या, कि हम लोग को एक नया सेपरेट स्टेट चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, एक सेपरेट स्टेट चाहिए, जो कि है, ठीक है, पाकिस्तान, जो कि है पाकिस्तान। दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट, जो कि है क्या, पाकिस्तान। द मुस्लिम लीग moved a resolution demanding independent states for the Muslim inhabiting northwestern and eastern regions of the country। Okay, many regions were responsible for the league's demand and separate Muslim state। Okay, and there are some regions ki the league began to view that you Hindus and Muslims are not separate communities but are separate nations। ठीक है, ये उन्हें पता है ना कि जब डिमांड करने लगे तो लोग बहुत सारी चीज बातें बोलने लगे। ठीक है, सम ऑफ द पीपल दे सेड दैट हिंदू और मुस्लिम लोगों का कम्युनिटी अलग नहीं है, वो पूरा अलग अलग नेशन ही है, उनका तौर तरीका अलग, उनका तौर तरीका अलग है। ठीक है, दे आल्सो सेड दैट कि हाँ, अगर यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड, सॉरी यहाँ पर हिंदू डोमिनेटेड एरिया है तो शायद हम लोग का बात जो वो लोग सुनेंगे भी नहीं। The community of the Muslim will be unheard if you stay in that one nation। ये सारी चीज भी उस टाइम होने लगा। And second क्या, when the Congress formed the government in 7 out of 11 provinces 1937 elections, the league began to feel that Muslims were a minority, जैसे मैंने बोला, Muslims were a minority in the country and always we have to play a second role in the country and may not be adequate representation। जैसे कि मैंने बताया कि वो लोग ऐसा फील करने लगे कि उन लोग का बात कोई नहीं सुनेगा, they will be unheard, their opinion will never matter। ठीक है, वो लोग अपने आप को इंफीरियर समझने लगेंगे, दे वर इनसिक्योर अबाउट द पोजीशन इन द कंट्री। ठीक है, दे वर सो लार्जली इनसिक्योर अबाउट द पोजीशन इन द कंट्री। ये सब भी होने लगा। The Congress rejection of the league's proposal jointly formed the government United Provinces in 1999 and also annulled the letter। ठीक है, and see this Congress also rejected this। Okay, Congress also rejected the Muslim League's proposal, and they said that we will be following the government in the United Provinces in 1999, but it also frustrated the Muslim League। They strongly wanted a different state or different nation, that is Pakistan। फिर देखो क्या हुआ। Okay, now see the failure of the Congress to mobilize the Muslim masses in India helped the League in widening the social base। And because of large protests also, Congress was not able to mobilize these Muslim people, they were not able to mobilize them। ठीक है, उन लोगों को उनको कंट्रोल नहीं ला पाए, and elections of the provinces were held in 1994, and because of this, ठीक है, वो लोग जो बोल रहे थे कि नहीं हम लोग मिलकर कुछ गठन करेंगे, मिलकर हम लोग एक यूनाइटेड प्रोविंस फॉर्मेशन करेंगे, वो नहीं हो पाया। एंड बिकॉज ऑफ दैट इन 1946 में फिर से इलेक्शन हुआ। ठीक है, एंड जहां पर
the league performed extremely well in the states और रिजर्व और मुस्लिम एंड सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। एंड इसीलिए उस एरिया में, जिस एरिया में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, वहां के वहां पर उस टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट भी था, एंड उन एरिया में मुस्लिम लीग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, मतलब दे हैव लार्जर वोट्स इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, दे वोन इन लार्जर वोट। एंड इन 1946 a 3-member committee was sent by the British government to India to examine the demand of league to suggest suitable political framework for independent India. And because of that, after 1946, three cabinet body has been sent and cabinet mission plan, ठीक है, the cabinet mission plan, ठीक है, उसको भेजा कि उसको डिमांड क्या क्या कर रहे हैं उसको देखने के लिए, उसको वैल्यू करने के लिए कि देखो कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद, जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है, जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है, and you know what happened in the cabinet mission plan suggested some degree of the autonomy of the Muslim majority areas. However, some of the proposals for independence were rejected by both of the Congress party. तो वो जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसने कुछ कुछ वहां पर कुछ कुछ डिटेल्स, वहां पर उसने कुछ कुछ वहां पर रिपोर्ट्स में कुछ कुछ लिखा, कुछ कुछ बोला, जो कि कुछ लोग तो हाँ बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन कोई कोई ऐसा चीज सेक्टर था जहां पर दोनों ही, ना कांग्रेस मान रहा था ना मुस्लिम लीग मान रहा था, उसको भी वहां पर काट दिया गया था। आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, द लीग ऑर्गेनाइज scale of movement demand the formation of separate state of Muslims, ठीक है। जब कैबिनेट मिशन प्लान वहां पर फेल हुआ, ठीक है, तब जो मुस्लिम लीग जो था, ओके, इट स्टार्टेड टू मोबिलाइज ऑल इट्स कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है, लोगों को वहां पर ज्यादा क्या हुआ, सोशल मूवमेंट वहां पर सोसाइटी में सारे लोगों को बुलाने लगे, ठीक है, दे स्टार्टेड टू मोबिलाइज, दे स्टार्टेड टू सोशलाइज पीपल, ओके, एंड डिमांड फॉर a separate state that is what only for Muslims, okay, and it declared 16th of August 1940 as a direct action day, ठीक है, and the Muslim League it declared अगस्त 16, 1940 as a direct action day, जहां पर, ठीक है, huge riots broke out among Hindus and Muslims, which actually killed a lot many of people, बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रक्शन था, बहुत ज्यादा किलिंग था उस टाइम, बहुत ज्यादा मास मर्डर था उस टाइम, लॉट मेनी ऑफ पीपल, इट हैज सीन ए वेरी वेरी वेरी, यू नो, वी कैन से दैट द कंडीशन इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज टोटली engulfed in violence, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन था उस टाइम, ठीक है। द वुमेन सफर्ड, द पीपल सफर्ड, द चाइल्ड सफर्ड, एवरीवन, ठीक है, मैन वुमन चाइल्ड एवरीवन सफर्ड, ठीक है, during that point of time. It's a day where nobody can forget that, okay, and you know, everyone get goosebumps thinking about that day, okay, everyone get goosebumps whenever they think about the 1946, okay, the direct action day, where the Muslim League, you know, they initiated, okay, they intimated these things to happen, and which you know, you can call it a massacre as well, which killed a lot many of people, okay. Then what happened, see, okay, then at last we'll say that, okay, India, yes, attended independence of 1947, yes, India attended, it's a very joyous movement, yes, it is a very joyous movement, but along with it, it came up with killings, it came up with what, violence, ठीक है, it came up with brutalities, faced by women, okay, many of the people, they have to leave their home, they have become refugees, okay, they had to leave a painful life. Independence of India was mad partition of the country, and innumerable miseries were inflicted upon the people of both sides, कि here पार्टीशन हुआ, इंडिपेंडेंस भी हुआ, लेकिन लोग भी सफर किए, मरे भी बहुत लोग, दोनों के साइड में लोग भी मरे, and this had caused a severe trauma within the people, within the heart of the people, and this is how we can say that, and this is how we can say that independence, we got independence, okay, we got independence, but it is not just a political struggle, but it is a social, emotional and moral journey. It is a social, emotional and moral journey. It is not just a political, struggle. So that's it about the chapter. I hope I have cleared
it in a well mannered way, which will be very much helpful for you guys. So that's it for today. Okay, we'll again come up with a different chapter. Okay, meet you soon. Thank you. Goodbye.